Hello students, welcome to our another lecture in this series, Irish Literature Background, and this is about Irish literary renaissance, or what we can say as Celtic revival, and this is part one of these two videos on the same, specifically focusing on the Irish literature and its context. Let's move forward now. Okay, so the first one we will discuss is the Irish society. Now, what kind of society does Ireland have that we study? Because literature is a mirror of the society, so it's important that we understand what kind of society do we have. So few basic features that we have identified that I feel we must mention here. The first point is no individualistic and class distinction. No individualistic and class distinctions. What do we mean by it? It means the majority of the Irish remained Catholics, and though many of the leading writers have come from the Protestant minority, traditional Catholic faith colors the background from which they have arisen. So it means there are no large individual personalities. There are no major class divisions like upper class, lower class, a middle class. Those things are absent in the Irish society. There are Catholics and Protestants, the two wings of Christianity. Both of them coexist. जो राइटर्स हैं आयरिश लिटरेचर के ज्यादातर राइटर्स प्रोटेस्टेंट्स हैं जो कि माइनॉरिटी में हैं, और जो कैथोलिक्स हैं वो मेजॉरिटी में हैं। लेकिन फिर भी जिस कम्युनिटी में वो रहे हैं प्रोटेस्टेंट आयरिश राइटर्स, उस कम्युनिटी में कैथोलिक्स भी मौजूद हैं। दोनों मिलकर उन्होंने एक सोसाइटी का ऐसा पिक्चर या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है जिससे कि ये प्रोटेस्टेंट राइटर्स प्रभावित हुए, इन्फ्लुएंस हुए, एंड दे वर एबल टू गिव an expression to their creative imaginary output. There is a total absence, as I said, of individualistic and class distinctions, and there is a sense of community. Community means एक ऐसी feeling, एक ऐसा emotion, एक भावना, एक ऐसी भावना that हम सब एक हैं, हम सब एक ग्रुप है, हम एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। ये मैं नहीं, हम हैं। मैं पे फोकस नहीं है, हम हैं। सोशल फ्लूइडिटी, सोशल फ्लूइडिटी का मतलब है कि आप सोसाइटी में अगर बहुत गरीब हो तो मेहनत से अमीर भी बन सकते हो, लेकिन आपका जो क्लास है वो फिक्स्ड नहीं है। आप अपने क्लास में मूव कर सकते हो, स्विच कर सकते हो। आपके ऊपर ये एक ठप्पा नहीं लग गया कि अब आप इसी सोसाइटी को या इसी क्लास को बिलोंग करते हो। दैट इज व्हाट वी मीन बाय सोशल फ्लूइडिटी। और इंग्लिश सोसाइटी में यहाँ पे मैंने पॉइंट इसलिए डाला है that these features, the four features, they were absent in the English society. They had long ceased to exist in England. Irish writers. Now, Irish writers, if we see, they are uncommitted. When we say, what do we mean by being uncommitted? It means that the Irish people are easygoing. Moral earnestness they have. See, I have put here a picture of two farmers. They have such joyful expressions. They may not wear the best of clothes, but they are joyful. They are simple people. They are morally earnest, and there is in such a situation there is a complete lack of social purpose, of moral earnestness. Irish writers are essentially uncommitted because a well-defined class structure, it provides the fodder for literature with its sensibilities and situations. There is an absence of such a social framework. It has been a weakness of Irish literature. तो सोसाइटी में अगर कोई बुराई है, कोई कमी है, तो एक लेखक को कुछ ऐसा
चारा मिल जाता है जिसके कारण वो लिखे, समाज को सुधारने के लिए या किसी की कहानी बताए। लेकिन आयरलैंड में ऐसा सोशल स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो शायद आयरिश राइटर भी समझ नहीं पा रहा मैं क्या लिखूं, अनकमिटेड। आयरिश पीपल आर सो सिंपल, राइट? ये एक कारण है क्यों हमें बहुत ज्यादा आयरिश लिटरेचर नहीं दिखता है। आयरिश एंशिएंट सिविलाइजेशन, गैलिक जिसे हम कहते हैं, तो एंशिएंट गैलिक सिविलाइजेशन का भी इन्फ्लुएंस है लिटरेचर पे। जो उसका प्राचीन सभ्यता है, गैलिक जिसे कहते हैं हम, उसका भी काफी प्रभाव है। आयरलैंड, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, इट बिकेम क्रिश्चियन इन द 5th century. The Gallic culture, it lasted from the 7th to the 12th century, and due to the British occupation, the Irish language declined steadily. By the first half of the 19th century, Irish had ceased to exist as a language for the educated. Anyways, ये सब हम अगले स्लाइड में देखेंगे, लेकिन इस स्लाइड में मैं बस आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि आयरलैंड का जो ये कल्चर है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ सिंबल्स लिए हैं, इन सब का काफी डीप मीनिंग है आयरिश कल्चर में। तो 5th सेंचुरी में क्रिश्चियनिटी आई, 7th में टू 12th सेंचुरी गैलिक कल्चर रही, और इसका काफी प्रभाव रहा आयरिश लिटरेचर पे। ठीक है, यहां पर हम देखते हैं डिसअपियरेंस एंड रिवाइवल। आयरिश लैंग्वेज डिसअपियरेंस, मैंने डिसअपियरेंस शब्द को ही रेड में कर दिया है, आपको भी कम ही दिखाई दे रहा होगा। मतलब आयरिश लैंग्वेज डिसअपियर हो गई जैसे शब्द की तरह, एंड रिवाइवल, फिर से नजर आने लग गई। क्यों? यहाँ पे मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं। आयरिश लैंग्वेज एंड ब्रिटिश रूल, बाय 1850 तक आयरिश भाषा पूरी तरह गायब हो गई। जैसे हमारे भी यहाँ पे इंडिया में हिंदी का जो वो है, हालांकि हिंदी गायब नहीं हुई, लेकिन संस्कृत भाषा का काफी डिक्लाइन हो गया। कुछ एरियाज में है, लेकिन आज भी आम भाषा जिसमें आदमी बात करता है वो संस्कृत नहीं है, आम आदमी की भाषा नहीं रही। तो उसी तरह से ब्रिटिश रूल के कारण आयरिश लैंग्वेज भी धीरे धीरे समाप्त हो गई 1850 तक। जो रह गई भाषा वो कौन सी थी? पेजेंट डायलेक्ट्स, दे सर्वाइव। पेजेंट डायलेक्ट मतलब जो वो किसान जो लोग हैं, किसान जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, डायलेक्ट्स, डायलेक्ट मीन्स बोली, सर्वाइव मतलब रही, जिंदा रही, वो भाषा ही सर्वाइव की, जो कि किसानों की जो बोली है, आपसी बोली है, वही सर्वाइव की, थोड़ी बहुत आयरिश लैंग्वेज का हिस्सा होगी। अच्छा, आयरिश रेनेसा मीन्स एक जागरूकता, पुनर्जागरण। 1921 में आयरिश फ्रीडम मिली। आयरिश बिकेम कंपल्सरी इन स्कूल, तो आयरिश को कंपल्सरी कर दिया स्कूल में आयरिश भाषा को, लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं मिला, नो सक्सेस। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात क्या है? पहली बात यह कि आयरिश लैंग्वेज ने इंग्लिश लैंग्वेज को प्रभावित किया, इट इन्फ्लुएंस्ड द इंग्लिश लैंग्वेज। हाउ? बिकॉज सिंच जो आयरिश थे, वेरी नोन आयरिश ड्रामेटिस्ट J.N. Synge, his English, it was a direct translation of the Gallic medium. Now, isn't that interesting? कि भाई एक टाइम ऐसा आया कि आयरिश भाषा को रिवाइव करने के लिए स्कूल में भी कंपल्सरी किया, लेकिन कहा जाता था that there is more Welsh language spoken among Welshmen than Irish among the Irishmen. लेकिन जिस भाषा का इंग्लिश में काफी इन्फ्लुएंस रहा वो थी आयरलैंड। जिस भाषा को ब्रिटिश ने दबा दिया, उसी भाषा ने अंग्रेजी भाषा को इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आयरिश ट्रांसलेशंस में आ जाती हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ये दो ऑटोबायोग्राफीज हैं, दो लिटरेचर है। आइलैंड मैन 20 years a growing, आइलैंड मैन है बाय टॉमस ओ क्रोहन, और ये है मॉरिस ओ सुलिवन की। ये दोनों ऑटोबायोग्राफीज है, आत्मकथाएं हैं, पेजेंट्स ने लिखी हैं, दोनों की दोनों फार्मर्स हैं, टॉमस ओ क्रोहन, मॉरिस ओ सुलिवन। ट्रांसलेशन है, इंग्लिश भाषा में ट्रांसलेशन है। और
दोनों के दोनों ये जो किसान हैं, पेजेंट्स हैं, दे आर फ्रॉम ब्लास्केट आइलैंड्स। ब्लास्केट आइलैंड्स आइलैंड का ही हिस्सा है, टापू है इनका नाम, इस टापू का नाम है ब्लास्केट टापू। कहां पर है ये? ऑफ द साउथ वेस्टर्न टिप ऑफ कैरी। मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगी मैप में कहां पर है। अच्छा, ये जो है इनके, ये किसके बारे में है? दे पोर्ट्रे men whose way of life was not greatly different from that of Homer's fishermen or the islander of the sagas। मतलब इन दोनों में जो कैरेक्टर्स हैं इन दोनों कहानियों में, ये कोई बहुत अलग नहीं है। ये बिल्कुल सिमिलैरिटी किससे है? होमर से, जो बहुत महान ग्रीक लेखक थे। इन्होंने कितने बड़े महाकथाएं लिखी हैं, एपिक्स लिखी हैं। तो इनकी कथाओं में जो फिशरमैन थे, जो किरदार थे, ये जो आयरिश पेजेंट्स की राइटिंग है, इनके किरदार भी, इनको कंपेयर किया गया है होमर के किरदार से, जो कितने महान थे। तो बहुत बड़ी बात है ये कंपैरिजन। आगे ये है कि द वैल्यूएबल वॉइस, इन दोनों में जो कहानियां हैं, इसको एक तरह से हम कहते हैं बहुत अच्छी, बहुत कीमती, बेशकीमती आवाज है। किसकी? इन दोनों की, क्योंकि ये आयरिश कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं किसान जो हैं। ये बहुत की बेशकीमती आवाज है, वैल्यूएबल वॉइस। किसका है? टू सेट डाउन द कैरेक्टर ऑफ द पीपल about me so that some record of us might live after us, for the like of us will never be again। ये किसका है? ये कहना है टॉमस ओ क्रोहन का। He was deeply conscious of the new civilization and he knew that this civilization will soon engulf men। That is why उनका उद्देश्य राइटिंग का ये था कि ऐसे किरदार मैं दिखाऊं अपने आसपास, एक तरह का मैं रिकॉर्ड बनाऊं जो शायद कभी वापस किसी को दिखाई ना दे। तो एक तरह से हिस्ट्री में इन्होंने इन दो कहानियों को लिखकर इन किरदारों को, इनके इसमें जो किरदार है उनको हमेशा के लिए अमर कर दिया है। ये देखिए, ये पिक्चर है ब्लास्केट आइलैंड की। ये एक पिक्चर ये है ब्लास्केट आइलैंड में जो गांव है, ये दूसरी पिक्चर उसकी है। ये टॉमस ओ क्रोहन की जो किताब है द आइलैंड मैन, उसका कवर पेज है। और ये जो दूसरी मॉरिस ओ सुलिवन की किताब है 20 years ए ग्रोइंग, ये उसका कवर पेज है। आयरिश लिटरेरी रिवाइवल या केल्टिक ट्वेलाइट, ये अलग अलग नाम है इसके। लिटरेरी रिवाइवल, केल्टिक ट्वेलाइट, 1890 से अर्ली 20th सेंचुरी तक का ये जो टाइम पीरियड है, ठीक है। देयर इज अ रिसर्जेंट ऑफ इंटरेस्ट। what do we mean by Irish literary revival और Celtic twilight? ये टाइम पीरियड इसका ये है। इसमें क्या हुआ ऐसा? इसमें ये हुआ, there was a resurgence of interest in Irish literature। आयरिश का जो साहित्य है उसमें एक जबरदस्त इंटरेस्ट, उफान आया। उफान किस चीज का? इंटरेस्ट का, एक रुचि लेने का। आयरिश लिटरेचर में, फोकलोर में, कथाएं, लोक कथाएं, कल्चरल आइडेंटिटी कि भाई मैं कौन हूं, एज आयरिश मैं कौन हूं, मेरी क्या पहचान है, which is closely tied to the rise of Irish nationalism and a Gaelic heritage। तो ये दोनों चीजें बहुत क्लोजली जुड़ी हुई हैं। किससे? आयरिश देशभक्ति की भावना से, गैलिक हेरिटेज से, जो धरोहर है हमारी। किसकी? गैलिक, आयरिश धरोहर। देयर वॉज अ सर्ज इन क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग में एक उफान आया। कौन है मेजर राइटर्स इस जमाने के माने जाते हैं? सबसे ज्यादा तो माने जाते हैं दो राइटर्स जिन्होंने आयरलैंड को बहुत फेमस किया, जिसने आयरलैंड का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। ये दो राइटर्स हैं जेम्स जॉयस एंड W.B. येट्स। और इन दो राइटर्स के अलावा भी काफी ऐसे राइटर्स हैं, मेजर एंड माइनर राइटर्स आर एग्जिस्टिंग, एंड they have been instrumental in the revolution in dramatic writing and acting technique in the field of English speaking theater। Look at this। जिस देश पे राज किया इंग्लिश ने, जिस कल्चर को उन्होंने दबाने की कोशिश की, उसी देश ने और उसी की कल्चर ने अंग्रेजों के ऊपर कितना बड़ा प्रभाव छोड़ा है उनके इंग्लिश थिएटर पे।
causes. Now, when we see कारण क्या थे, what were the causes of Irish literary renaissance, ये क्या कारण था कि एकदम से ऐसा क्रिएटिव राइटिंग में ऐसा उफान आया? देखो, सबसे पहले तो ये है कि देयर इज नो ट्रेडिशन ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। आयरलैंड में ऐसा कोई ऐसा रिवाज ही नहीं है कि भाई पेंटिंग या म्यूजिक में कोई बहुत बड़ा इंटरेस्ट हो या कोई बड़ी हिस्ट्री हो कि इस चीज को बढ़ावा दिया जाए। क्यों? दो कारण है उसकी। सबसे पहला कि जो पूरा देश का इतिहास है वो हमेशा से बड़ा अधीन रहा है, हमेशा अपनी आजादी की लड़ाई ही लड़ता रहा है। तो डिस्टर्बेंस तो हुई है, स्टेबिलिटी नहीं है। बिकॉज ऑफ अनस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी, देयर इज नो इंटरेस्ट इन एनीथिंग बट सर्वाइवल। एक आम आरिश आदमी सिर्फ हर वक्त सर्वाइवल की ही सोचता रहा। फ्री टाइम होगा तो ही तो पेंटिंग और म्यूजिक की तरफ ध्यान जाएगा। दूसरा कारण है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अ वेल्दी मिडिल क्लास पेट्रोनेज। पेट्रोनेज मीन्स किसी भी तरह का सपोर्ट। अब ये जो आर्ट्स हैं, इस टाइप की चीजों के लिए आपको कोई ऐसा पैसे वाला सपोर्टर चाहिए जो आपके परिवार का भरण पोषण के लिए पैसे आपको हर महीने आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सके। अगर दे सके तभी तो आप उसके लिए कुछ लिखोगे म्यूजिक में या पेंटिंग में। वरना एक आम आदमी तो हमेशा यही सोचता है मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूं। फैमिली तो सबसे पहले आ जाती है। हर धर्म भी ये सिखाता है। अगर वो पूरे दिन अपनी रोजी रोटी की तलाश में रहा है तो वो पेंटिंग और म्यूजिक को क्या देखेगा? टाइम ही नहीं है उसके पास। और अगर उसे पेंटिंग और म्यूजिक की तरफ देखना है देन उसे कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो उसको सपोर्ट कर सके उसके खर्चों में, ताकि वो व्यक्ति सिर्फ पेंटिंग और म्यूजिक की सोचे। तो क्योंकि ऐसे कोई ट्रेडिशन या रिवाज नहीं था आयरलैंड में, कोई वेल्दी मिडिल क्लास पेट्रोनेज सपोर्ट नहीं था और हिस्टोरिक इंस्टेबिलिटी थी, इसीलिए क्रिएटिव आर्ट्स में ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। ऐसे में लिटरेचर ही एक ऐसी चीज थी जो कि रही, क्योंकि लिटरेचर लिखाई तो आप ऐसे ही कर सकते हो, बैठे बैठे अपने विचार को प्रस्तुत करना वो आप वैसे ही कर सकते हो, है ना? तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। 1892 में, अब हम देखते हैं 1892 में पॉलिटिकल नेशनलिज्म है उसे एक सडन एंड अनयूजुअल चेक मिला when the movement was split from top to bottom over Parnell's divorce case। अब ये पार्नल जो थे एक नामी गिरामी पॉलिटिकल फिगर थे जिसके पीछे पूरी जनता एकजुट हो गई थी। लेकिन 1892 में क्या हुआ, इनकी पर्सनल लाइफ थोड़ा सा पब्लिक में आ गई। इनका एक डिवोर्स केस था जिसके कारण इनकी रेपुटेशन बहुत खराब हो गई और जो लोग इनके पीछे एकजुट थे उनका हौसला टूट गया, क्योंकि वो इन्हें बहुत, वो पार्नल के बारे में जो सोचते थे उससे बड़ी निराशा हुई कि जैसा हमने सोचा पार्नल तो कुछ और ही निकला। इसी कारण से जो पूरा एक मूवमेंट था नेशनलिज्म का, देशभक्ति का, वो प्रभावित हुआ, क्योंकि सभी को तो एकजुट सिर्फ एक व्यक्ति ने किया और इस व्यक्ति के कारण ही सारी चीज टूट गई। तो 1892 में ऐसा हुआ और जो आम आदमी है वो पूरी तरह से टूट गया। पेनफुल डिसइल्यूजन अमंगस्ट मासेस। नेशनलिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगी कि ये जो यीट्स और जॉयस थे जो मेजर राइटर्स थे, इनके फॉर्मेटिव ईयर्स जब ये बड़े हो रहे थे तो मेन ईयर्स में ये सब ये देख रहे थे, गैलिक लीग का बनना, नेशनल थिएटर मूवमेंट, है ना? तो ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव इयर्स ऑफ ईट्स एंड जॉयस नेशनलिस्ट फर्वर वाज सीकिंग एन आउटलेट आउटसाइड पॉलिटिक्स। तो नेशनलिज्म को पॉलिटिक्स के आगे भी एक देशभक्ति की भावना बहुत ज्यादा हवा में थी। The Gallic League, which was a movement it to revive the language, and the National Theatre movement were the principal beneficiaries। ये दोनों जो थे ये भाषा को ही उभारने के लिए थे, नेशनल थिएटर मूवमेंट भी, और ये इनके टाइम में थे। तो तभी लिटरेचर का उत्थान हुआ, इंप्रूव हुआ। न्यू थिएटर मूवमेंट, इसमें कौन कौन व्यक्ति थे? सबसे पहले तो आ जाते हैं यीट्स।
अब न्यू थिएटर मूवमेंट में क्या था सबसे पहले कि पर्सनालिटीज जो इसके पीछे थे उन सब का अलग अलग उद्देश्य था. पीपल बिहाइंड इट हैड डाइवर्स एम, येट दे हैड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी. कैसे? यीट्स जो थे उनका इंटरेस्ट वाज इन ड्रामेटिक वर्स. तो यीट्स जो प्रोटेस्टेंट थे ये बिल्कुल लिटरेचर के ही लव लिटरेचर, और उनका यही एक कारण था उन्होंने न्यू थिएटर मूवमेंट क्यों शुरू किया. इनके बाद आ जाते हैं एडवर्ड मार्टिन. ये कैथोलिक लैंडलॉर्ड थे. ही वॉज अ फिलैंथ्रोपिस्ट विद पॉलिटिकल एम्बिशंस. इनका लिटरेचर से इतना रिलेशन नहीं था. ये एक जमींदार व्यक्ति थे, कैथोलिक थे, और एक समाज सेवा भी इनका इंटरेस्ट था, पर ये पॉलिटिक्स में भी जाना चाहते थे. तो ये चाहते थे कि इब्सनिज्म टू आयरलैंड को लाना चाहते थे. अब ये क्या है? इब्सन जो है ये बहुत नामी गिरामी ड्रामेटिस्ट थे इस जमाने के, और इन्होंने अपने ड्रामा जो इनका नया तरीका था उसमें एक प्रॉब्लम, एक समस्या को पेश करते थे और उसका समाधान भी उसी कहानी में दिखाते थे. तो इससे एक तरह से लोग जब ये कहानी देखते थे तो कहीं ना कहीं उन पे प्रभाव पड़ता था कि भाई समाज में बुराई है, हम इसको ऐसे हटा सकते हैं. तो यूरोप के ये नामी थे, और एडवर्ड मार्टिन जो थे उन्होंने जब देखा कि भाई ये एक जरिया है थिएटर के थ्रू समाज में सामाजिक बुराइयों को हटाने का, तो वो चाहते थे कुछ ऐसा ही हम आयरलैंड में भी लाएं. एक थिएटर में हम ऐसे ही ड्रामा पेश करें जिसमें हम इसी तरह की समस्याएं दिखाएं और उनका समाधान भी दिखाएं. ठीक है? तो एडवर्ड मार्टिन का ये एम था कि भाई वो ड्रामा में क्यों आए. उसके बाद जॉर्ज मूर आ जाते हैं. ये भी एक जमींदार थे, कैथोलिक लैंडलॉर्ड. ही लव्ड आयरिश कंट्री साइड एंड इट्स folk. इन्हें आयरिश आम आदमी से, गांव के व्यक्ति से बहुत प्यार था. आम आदमी से, आयरिश के गांव से बहुत प्यार था, और इन्हें जो नई स्टाइल थी ये बहुत पसंद थी. इनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी था थिएटर इन लंदन एंड पेरिस. पैसे वाले थे तो काफी ये लंदन और पेरिस के थिएटर्स में भी आना जाना इनका था. तो ये सब इन्हें बहुत पसंद था, चाहते थे ये सब मैं आयरिश आयरलैंड में भी लाऊं. अगले व्यक्ति है लेडी ग्रेगरी. ये प्रोटेस्टेंट थी, डिप्लोमेसी करती थी. जैसे कि शी वॉज अगर हम देखें तो लेडी ग्रेगरी जो है इन्होंने डिप्लोमेसी ऐड किया है इस पूरे मूवमेंट में. इनके पास थोड़े पैसे थे. ये एक विडो थी, नामी गिरामी वो लैंडलॉर्ड की, और इन्होंने थोड़ा सा अपने पैसे इन्वेस्ट किए. इधर इन्होंने थोड़े बहुत शॉर्ट प्लेज भी लिखे. तो डिप्लोमेसी कैसे थी? इन्हीं के घर में यीट्स और ये सब व्यक्ति मिलते थे. तो एक ग्राउंड मिल गया, कॉमन ग्राउंड जहां पे मिले. ये प्रोटेस्टेंट थी, पैसे दिए, इन्होंने लिखाई भी. तो इधर हम देखते हैं कि कैसे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स, देखिए ये एक ग्रुप था मगर इसमें प्रोटेस्टेंट कैथोलिक दोनों थे, और दोनों इसलिए इकट्ठे हुए क्योंकि इन्हें आयरलैंड से बहुत प्यार था, आयरिश लोगों से बहुत प्यार था, देशभक्ति की भावना इनमें थी. न्यू थिएटर मूवमेंट के पीपल में आ जाते हैं अगले फे ब्रदर्स, विलियम एंड फ्रैंक. कौन थे? अब इससे पहले हमने जो चार व्यक्ति देखे वो तो लिटरेचर वाले लोग थे. ये जो दो भाई थे ये थे थिएटर वाले. They were seeking better Irish dramas to perform as compared to the current Irish melodramas. मतलब जो उस वक्त आयरिश ड्रामास थे उसमें इमोशंस बहुत ज्यादा दिखाते थे, लेकिन ये दोनों भाई जो थे ये देख रहे थे कुछ हम बेटर, कुछ बेहतर करें, न्यू स्टाइल में करें. ठीक है? And they had been for some years acting in amateur and low paid production in Dublin एंड द प्रोविंसेस. और ये काफी टाइम से ये एक्टर्स थे, दोनों कुछ ड्रामे में एक्टिंग करते थे, बहुत कम पैसे इन्हें मिलते थे लेकिन फिर भी एक्टिंग करते थे, ये इनका जरिया था कमाई का. दे अप्रोच जॉर्ज रसल एंड डगलस हाइट, द फाउंडर ऑफ गैलिकली. डगलस हाइट जो गैलिकली जिन्होंने फाइंड किया, जॉर्ज रसल को इन्होंने अप्रोच किया और रसल ने इनको यीट से इंट्रोड्यूस करवाया. तो आप देखिए इट वॉज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू. मतलब कि लिटरेरी पर्सनालिटीज थी चार जो हमने पिछली स्लाइड्स में देखी, और ये दो थे एक्टर जिन्हें ब्रेक चाहिए था. तो लिटरेरी इंटरेस्ट प्लस थिएटर इंटरेस्ट से नए थिएटर का जन्म हुआ. यहां पर हम खत्म करते हैं हमारा पार्ट 1. इन पार्ट 2 वी विल सी फर्दर अबाउट हाउ आयरिश लिटरेरी renaissance got an impetus. I hope this video was useful for you, and
In case you have any question, you can put it in the comments box. And as I always leave you with, happy learning till we meet next.